This is the main part of today, and many MCQs will come from this. Everybody come to types of custom duty. Types of custom duty. Ready? Yes, sir. Okay. Now this is the type what we have to complete today. ये अपना आज का टारगेट है गाइस. आज अपने को सारे टाइप के कस्टम ड्यूटी खत्म करने हैं. ओके, अच्छे से करने हैं ताकि अपने को कल वापस रिवीजन करने में याद आने चाहिए. अगेन आई रिपीट गाइस, टिल टुमारो विल बी डन विथ almost half of the first chapter of customs law, that is lesson number 17, right? And अगर हमारा ये lesson number 17 अच्छे से हुआ है तो हमारा एक लॉ बहुत अच्छे से हुआ है ना. और it is 50% of the chapter should be completed by today. I repeat, 50% of the chapter. तो इफ यू मस्ट हैव, मतलब आपने अगर कल का भी रिवाइज किया और आज का भी रिवाइज करके पूरा चैप्टर एकदम पिट पैट कल तक करके रखोगे, सो विल कम टू नो टू स्कोर 5 to 6 marks was very easy. I told you the chapter has a weightage of 5 marks, and once I complete this chapter, then I will take a test of one chapter, only one chapter, lesson number 70. And that time I will immediately announce the test and I will immediately take. Why? Because I also know that everybody is studying every day. So then I can't, we can't have that, okay, I announce a test and then test will be taken in 1 week later and then results will be given 1 more week later. We don't have that much time in executive. Okay, the day I complete, next day will be the test. Is that very, very clear? जिस दिन चैप्टर खत्म उसके अगले दिन टेस्ट लिखना है. तो आपको डेली पढ़ना ही है ताकि आपको लिंक में रहना चाहिए. So guys, this is the main answer of today. Types of custom duty. We begin from import duties. The first import duty which is levied on the goods is called as BCD, basic custom duty. I repeat, it is called as BCD, basic custom duty. Okay. ये कैसे लगता है? तो ये परसेंटेज फॉर्म में लगता है. परसेंटेज किसका लगता है? तो वैल्यू के ऊपर निकालना होता है. तो वैल्यू कौन बताएगा? तो वैल्यू कौन सी सेक्शन बताएगी? सेक्शन 14(1). सो आई रिपीट, BCD एट द रेट ऑफ 5% है, 10% है, वो मालूम पड़ेगा. मतलब इट मीन परसेंटेज. बट वो 5% है कि 10% किसके ऊपर लगाना है परसेंटेज? तो एक वैल्यू होगी. वो वैल्यू कहां से मिलेगी? तो सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 से मिलेगी. और क्या हम सेक्शन 14 तक पहुंचे क्या? अभी तक नहीं. वी आर ओनली टिल सेक्शन 12 टुडे. 2, BCD या तो स्टैंडर्ड रेट से लगेगी या प्रेफरेंशियल रेट से लगेगी. व्हाट इज प्रेफरेंशियल रेट? प्रेफरेंशियल मतलब डिस्काउंटेड रेट. वाई डिस्काउंटेड रेट? अगर आपने कोई कमोडिटी अपने मित्र देश, अपना फ्रेंड कंट्री से अगर खरीदी है तो उस फ्रेंड कंट्री के चीज के ऊपर हम कम रेट लगाते हैं. इट्स लाइक वी डिवाइड द कंट्री इनटू फ्रेंड, एनिमी एंड क्लोज फ्रेंड्स. सो इफ यू बाय अ कमोडिटी फ्रॉम योर क्लोज फ्रेंड, which is called as a preferential area, then you will be charged BCD at preferential rate. If you want to import a commodity from enemy country, our country will not allow it. It is prohibited. And if you want to import a commodity from your friend country, it is allowed. But if it's a friend, then it's a standard rate. But if it's a close friend, then preferential rate. Is that very, very clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now who will prove that you have taken it from a close friend? So the owner of the goods has to give evidence. Evidence मतलब सबूत कि हमने ये जो सामान है ये हमने क्लोज फ्रेंड से खरीदा है. उसका आपको एविडेंस देना पड़ेगा. You have to prove it
that you have bought the goods from a close friend, then only preferential rate duty will be applicable. Otherwise, standard rate of duty will be applicable. Is the BCD very clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. So if I want to revise BCD, I call it as BCD is charged as a percentage on value. How do you get value? From section 14 subsection 1. It is charged at standard, preferential, 2 rates. Preferential only for close friends, standard for all friends, and enemy country you are not allowed to import. You have bought it from a close friend, you will only have to prove, the owner of the goods has to prove that you bought the goods from the close friend. Is the whole provision very clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Great. So that is BCD. The second is additional custom duty, also called as countervailing duty. I repeat, additional customs duty, also called as countervailing duty. Why this is charged? See guys, I told you, for every commodity you may have Indian manufacturers for every commodity versus imports. अगर मेरे imports, सपोज मेरे को कोई कमोडिटी 10 रुपए में आती है और मेरा इंडिया का मैन्युफैक्चरर उसको 15 रुपए में बनाता है. क्यों 15 रुपए में बनाता है? क्योंकि इंडिया में भी उसकी कॉस्ट 10 रुपी प्लस इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स है जीएसटी 5 रुपए का. इन शॉर्ट उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपने आप 15 हो जाती है. मतलब एक्चुअली वो भी 10 रुपए में बनाता है, पर क्योंकि वो इंडिया में बनाता है तो इंडिया में 5 रुपया बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ जीएसटी, तो उसकी कॉस्ट हो जाती है 15 रुपया इंडिया के प्रोडक्ट की, और इंपोर्ट वाला 10 रुपए में इंडिया में दे देता है. तो नॉर्मली एज अ कस्टमर हम कौन सा आइटम प्रेफर करेंगे? 10 रुपए में वही चीज मिल रही है वो कि 15 रुपए में मिल रही है वो? समझने वाली बात है यार. 10 रुपए में, पर अगर हम 10 रुपए में वो इंपोर्ट वाली चीजें खरीदते जाएंगे तो किसका नुकसान होगा? कम ऑन, किसका नुकसान होगा गाइस? इंडिया के मैन्युफैक्चरर का. अगर इंडिया के मैन्युफैक्चरर का नुकसान होगा तो इनडायरेक्टली इंडिया का जीडीपी का नुकसान होगा. यस और नो? इंडियाज जीडीपी विल बी बैडली हिट. डू यू अंडरस्टैंड दैट और नॉट? Yes, sir. If India's GDP will be hit, India's national income will be hit, India's growth will be hit, India's economic growth will be hit. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So in India we make a law to safeguard our country or to harm the country? अपने को अपने देश को बचाना है यार. Come on, we want to save our country, right? तो हम क्या बोलते हैं बॉस, तू सिंपल है साला, इंडिया का मैन्युफैक्चरर 5 रुपया जीएसटी भर के 15 में उसका कॉस्टिंग पड़ता है ना, तो तू इंपोर्ट करेगा ना, तो बॉस मैं तेरे को भी 5 रुपया लगा दूंगा, 5 रुपया लगा दूंगा, पर एक नए नाम से लगाऊंगा, आईजीएसटी. आईजीएसटी, आई माने इंपोर्ट करके आया ना तू, तो आज आईजीएसटी, और तेरे को 15 रुपया ला लूंगा ताकि तू और ये एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर बन जाए. नाउ लेट द कस्टमर चूज, उसको यहां से लेना है कि वहां से लेना है. We will not harm the Indian manufacturer. Are you getting it? Yes, sir. अब ये 5 रुपया जो है ना, जो हमने इंपोर्टेड गुड्स पे लगा दिया, उसका नाम है एसीडी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी. एवरीबडी अंडरस्टूड एडिशनल कस्टम ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी? Yes, sir. Yes. Yes. प्लीज रिमेंबर दिस एग्जाम्पल. इससे क्या हुआ? इंपोर्टेड गुड्स और इंडियन गुड्स विल बी अवेलेबल एट द सेम प्राइस. इज दैट वेरी क्लियर? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. आप लोग इतना सारा क्या लिख रहे हो? इतना तो मैं बोल भी नहीं रहा हूं जितना तुम लिख रहे हो. क्या मतलब, क्या चाहते क्या हो? अब मैं हाय बाय बोलूंगा वो भी लिख दोगे क्या? मतलब कितना क्या लिख रहे हो यार? मतलब आराम से समझोगे तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. सो गाइस, आई रिपीट, दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाओ कि इंपोर्टेड गुड्स
has to be in competition with Indian goods. Otherwise, Indian manufacturers will die. So, to make their price equal to Indian manufacturers, whatever duty we charge is called as countervailing duty or additional customs duty. And let me underline this: it is equivalent to the excise duty on manufacturing. 2, it is IGST. It is payable on assessable value प्लस BCD, मतलब असेसेबल वैल्यू में BCD ऐड करेंगे, उसके ऊपर IGST ऐड करेंगे. सर हाँ, अभी आपने जो बोला कि इंडियन गुड्स और इम्पोर्टेड गुड्स का ऐसे प्राइस सेम होना चाहिए, तो फिर लोग तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेड गुड्स ही चूज करेंगे, राइट? तो भी तो फिर नहीं, not necessary. People will choose better product. Example, recently, let me give you an example, Sakshi. Recently during the Diwali, last 4-5 साल से ऐसे तो चल रहा है, but people are boycotting China lights. You must have seen that. Yeah. दिवाली के पहले वो WhatsApp पे मैसेज आना चालू रहता है. Don't buy, guys, don't buy China, don't buy. Because China earns income and then China uses that against India. Yes or no? ऐसा सब सुना है क्या तुम लोग ने? Yes. ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस आपके पास भी आए होंगे बिफोर दिवाली. यस और नो? अरे बोलो यार, सुना ही भी नहीं. Yes, sir. Okay. So you know what? Recently you must have noted, if I don't know whether this year you went down to buy Diwali lights or not, but you must have noted that even Indian lights have become so cheaper. They are as compared to that China lights. Plus Indian lights के ऊपर manufacturers have started giving warranty. कि इंडिया का लाइट खरीदोगे ना, तुमको एक दिवाली का गारंटी देंगे, चाइना का कोई गारंटी नहीं. तो ऑटोमेटिकली पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग इंडियन लाइट्स नाउअडेज. डिड यू नोटिस दैट? यस सर. Yes, sir. सो वन, जैसे साक्षी ने बोला कि पीपल विल ऑब्वियसली बाय इंपोर्टेड गुड्स, तो साक्षी वो मेंटालिटी बदल रही है बेटा. दैट मेंटालिटी, इनिशियली अपना मेंटालिटी वही था कि हाँ imported goods are much better, but ऐसा नहीं है. imported goods may or may not be that better. So make in India is successful. पर अभी तेरे दिमाग में बैठ गया है कि भाई imported goods ही अच्छा होता है, right? But I repeat, अभी जैसे साक्षी ने बोला, हाँ साक्षी जैसे लोग भी तो है देश में. क्योंकि साक्षी ये बोलेगी कि सर मुझे अगर 15 रुपए में इंपोर्टेड मिलेगा और मेरे को तो इंपोर्टेड ही समझ में आता है, आई डोंट लाइक दिस कंट्री एट ऑल, आई विल गो फॉर 15 रुपीज इंपोर्टेड, देन व्हाट विल माय कंट्री डू? तो नो वरीज, साक्षी जैसे लोगों के लिए हमारे पास एक और ड्यूटी है, अभी आगे आने वाली है. ओके, क्योंकि ये तो मैंने आपको दोनों व्यू बताया. पहला जो साक्षी का व्यू गलत किधर है वो भी बताया, पर अगर उसका व्यू सही है तो उसके लिए भी हमारे पास एक तोड़ है, which I'll be just coming in a minute there. But before that, let me just complete this. In case of alcoholic liquor for human consumption, दारू जो तुम पीता है, ह्यूमन कंजम्पशन मतलब दारू जो इंसान पीते हैं, बिकॉज ह्यूमन कंजम्पशन की दारू अलग होती है और इंडस्ट्रियल कंजम्पशन की लीकर अलग होती है. ह्यूमन कंजम्पशन की दारू अभी तक जीएसटी रिजीम में नहीं है, इसलिए उसके ऊपर आईजीएसटी नहीं लगता है. Still, IGST cannot be charged on alcoholic liquor for human consumption. And this point I am not explaining right now. ये पॉइंट मैं बाद में समझाऊंगा. वहां देखो मैंने स्टार मार्क मारा है, मतलब मैंने पढ़ाया ही नहीं है. आगे देखते हैं. थर्ड ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी. अब ये क्यों लगाई जाती है? इट इज यूज टू लेवी ऑफ सेल्स टैक्स और वैट. नाउ इंडिया में समझो तुमने 15 रुपए में बना तो दिया, पर इंडिया का सरकार क्या बोलता है, तुमको अगर बेचने का है तो बेचने पे सेल्स टैक्स लगेगा. तो इन शॉर्ट तुमको 20 रुपए में बेचने को मिलेगा. बोला तो इंपोर्टर वाला तो 15 में बेच के जाएगा. तो इंपोर्टर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बॉस तेरे को भी 5 रुपया मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो तेरा कंपटीशन डोमेस्टिक के साथ नहीं रहेगा. तो तेरे को जो मैं 5 रुपया बढ़ा रहा हूं उसका नाम आएगा सैड. SAD, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी. आई होप नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द पर्पस ऑफ SAD. कि सेल्स टैक्स जो है वो सेल्स टैक्स को सेल्स टैक्स से सामने उड़ाने के लिए.
ताकि हमें ये 20 रुपया सी, इफ यू नोटिस हमें कंपटीशन सेम रखना है। कंपटीशन सेम करने के चक्कर में ये करते हैं हम लोग, पर पेट्रोल के ऊपर नहीं लगेगा बिकॉज पेट्रोल इज स्टिल नॉट अंडर जीएसटी। नाउ सीयर बीसीडी सपोज 10% दिया है, एग्जाम्पल्स हैं। सीबीडी 12% है, 12% किस पे लगेगा? एसेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी। और सैड कितने पे लगता है? 4% ऑन बीसीडी प्लस सीबीडी प्लस सेस। ओके, जरूरत नहीं है ना, प्लीज हियर this is as per SETA law 37, if any article is imported into India उसके ऊपर IGST लगता है and the value is determined by section 3(8) of the SETA law। सिर्फ सेक्शन याद रखना है। नाउ यहां तक तो सिर्फ सैड और सीबीडी लगाया तुमने, मतलब बीसीडी लगाया। बीसीडी तो सबके ऊपर लगता है, या तो स्टैंडर्ड रेट से लगता है या प्रेफरेंशियल रेट से लगता है। देन वी चार्ज सीबीडी। सीबीडी वाज टू इक्वलाइज एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज इज द टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर। सैड इज लेवीड टू इक्वलाइज स्टेट लेवी। स्टेट लेवी इज द सेल्स टैक्स लेवी। बट उसके अलावा भी 3 और ड्यूटी अभी मैं पढ़ाने वाला हूं। उसमें सबसे पहले लेट मी टीच यू जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। I repeat, GST compensation cess. Now, this is charged as per section 8 of the GST compensation cess 2017 law. So, this is also a duty. बस इतना याद रखना है, nothing else. Okay. Protective industry, see, protective duty and safeguard duty. ये 2 ड्यूटी है ना, ये 2 ड्यूटी बहुत क्लोजली रिलेटेड ईच अदर है। यू नो, सपोज अभी जैसे मेरे को साक्षी ने बोला कि सर 20 रुपए में इंडिया का गुड्स भी मिल रहा है, 20 रुपए में इंपोर्टेड भी मिल रहा है, मैं तो इंपोर्टेड खरीदूंगी। अभी मालूम पड़ा साक्षी जैसे लोगों की तादाद ज्यादा हो गई, सबके सब वही 20 रुपए वाला इंपोर्टेड खरीद रहे। तो टेक्निकली इस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर की तो बैंड बच जाएगी। अब इसको प्रोटेक्ट करना मेरी जवाबदारी है, क्योंकि ये मेरे देश का बंदा है। इसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मैं इसको बोलूंगा, ए भाई ले, तेरे को 5 रुपया और लगा दिया, तू 25 का हो जा। तो ये जो 5 रुपया लगा है ना एक्स्ट्रा, दिस इज कॉल्ड एज सेफगार्ड ड्यूटी और प्रोटेक्टिव ड्यूटी। इज दैट वेरी वेरी क्लियर नाउ? Yes. सो दैट्स द रीजन आई सेड दैट साक्षी जैसे लोग भी होते हैं, तो उसका भी तो लॉ में कोई तोड़ होना चाहिए। इज दैट अंडरस्टैंडेबल नाउ? Yes, sir. तो लॉ क्या बोलता है? इंपोर्टेड चीज को महंगी कर दो, इतनी महंगी कर दो, इतनी महंगी कर दो कि बहुत कम लोग उसको खरीदे। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। यू नो, मार्बल, ये ना मार्बल लोग फ्लोरिंग पे लगाते हैं, फ्लोरिंग पे। यू नो, मेरे जैसे गरीब लोग तो जमीन पे वो सीमेंट का कुछ मिला तो ठीक है, वैसे ही सो जाते हैं चटाई वटाई बिछा के। पर जो लोग रईस होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, आप समझा क्या? जैसे कीमाया, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कीमाया। शी इज वेरी रिच, फिल्दी रिच, ओके। तो शी विल नॉट स्लीप ऑन नॉर्मल फ्लोर, शी विल रिक्वायर मार्बल। तो मार्बल भी कैसा आएगा? एक आएगा राजस्थान का मकवाना मार्बल, और एक वो बोल रही है नहीं यार, ये मार्बल अगर लगाऊंगी मेरे घर में तो मैं तो इटालियन मार्बल लगाऊंगी, इटली से मंगाऊंगी। आर यू गेटिंग दैट? इटालियन मार्बल। सो सपोज मकवाना मार्बल इज अवेलेबल इन 400 rupees a square feet, Italian marble is available in 2000 rupees a square feet. There is no competition, boss.
दिस नो कॉम्पिटिशन. बस जब 2,000 रुपया, एवरीबडी इज नॉट रिच एज किमाया, उसका बजट जैसा कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, उसके पास तो पानी के जैसा पैसा है, तो वो 2,000 रुपये वाला मार्बल ही लगाएगी ना बॉस. आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या? इसमें तुम डोमेस्टिक इंडस्ट्री का क्या आचार डालोगे? अरे उसको चाहिए नहीं, उसको चाहिए उसके घर में ना दरवाजे के हैंडल से लेकर बाल में डालने का पिन सब इंपोर्टेड होना मांगता है. अभी उसका माइंडसेट ही ऐसा है, तुम कितना भी ड्यूटी लगाओ ना वो इंपोर्टेड ही खरीदेगी. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? यस सर. अब तुम कौन सी इंडस्ट्री को बचाओगे भाई? अगले के पास पैसा ही इतना है तो तुम क्या करोगे? दैट्स द रीजन गाइस, पीपल प्रेफर इटालियन मार्बल, जबकि उसका कॉस्ट मकवाना मार्बल से 5 टाइम्स ज्यादा है. इमेजिन आपने कितना उसके ऊपर प्रोटेक्टिव ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी लगा दिया है, फिर भी लोग वही खरीदते हैं. यू नो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. यहां पे बहुत मतलब करोड़ों एग्जाम्पल है यार. मैंने ऐसे लाइफ में ऐसे क्लाइंट के यहाँ कभी गया हूं मैं, कितने ऐसे घर का मैंने इंटीरियर देखा है कि उनके घर में ना एक भी चीज इंडियन नहीं होती, सिर्फ खुद इंडिया के होते हैं, बाकी सब बाहर का. मतलब समझ रहे हो क्या? मतलब बस वो खुद ही जो उनका शरीर है ना बस वही इंडिया का है. माने इमेजिन ना, मतलब कपड़ा भी बाहर का पहनता है, चश्मा भी इंपोर्टेड मांगता है, मतलब सब कुछ इंपोर्टेड मांगता है. तो अभी जिनको लाइफ में ये आदत ही पड़ी हुई है कि मुझे इंपोर्टेड ही खरीदना है, राइट, उसको तुम्हें ड्यूटी से डरा नहीं सकते. तुम कितनी ड्यूटी से डराओगे भाई? उसके पास फुल पैसा है. तो लोग क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोटेक्टिव ड्यूटी कब लगाएंगे? जब कोई इंडस्ट्री जेन्युइन खतरे में है तो हम प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाएंगे एज पर सेक्शन 6 ऑफ द सेटल लॉ. और सेफगार्ड ड्यूटी कब लगाएंगे? जब मालूम पड़ा कि कोई इंडस्ट्री को बहुत हर्ट हो रहा है, क्योंकि लोग इंपोर्टेड गुड्स ही खरीदते जा रहे हैं, कोई इंडस्ट्री की बैन बनने वाली, वो बंद होने वाली है, तो हम सेफगार्ड ड्यूटी लगाएंगे. ये दोनों ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है. बट ये कब लगाई जाती है? जब ये एग्जाम्पल, जब ये देखा तुमने 20-20 रुपए का सेम कंपैरिजन था तो तुमने चलो 5 रुपए लगा दिया. अरे भैया 400 रुपए 2,000 रुपए का कोई डिफरेंस ही नहीं है बॉस. 5 गुना चीज महंगी है. 400 रुपए वाली कैटेगरी का कस्टमर ही अलग होता है और 2,000 रुपए वाली कैटेगरी का कस्टमर ही अलग होता है. आपको पता चल रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अभी रिसेंटली मैंने पैलेडियम मॉल में गया था. पैलेडियम मॉल पता है क्या? पैलेडियम, यस सर. वहां पे मैंने शर्ट की दुकान में अंदर एंटर किया. मुझे एक शर्ट है ना बहुत पसंद आई. मैंने उसको पूछा शर्ट की एमआरपी कितनी है, तो बोलता है 2 लाख रुपीज सर, ओनली 2 लाख. कितने का शर्ट दिखाया उसने मेरे को? आपको देखो ये शर्ट में मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? एम आई लुकिंग स्मार्ट और नॉट गाइस? सच्ची बोलो, ये शर्ट में मैं कैसा लग रहा हूँ? देखो अच्छा लग रहा है ना? तो 2 लाख का शर्ट काय को पहनेगा? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस. मतलब 2 लाख का शर्ट किसको बोलते हैं? एक शर्ट 2 लाख रुपए का, मतलब आप समझ रहे हो? पूरा वार्डरोब मेरा निकालूंगा तो उसका भी 2 लाख रुपए से कम ही होगा. आप समझ रहे क्या? और उतने का एक शर्ट. पर आपको समझ में आ रहा है वो कस्टमर अलग नहीं होता होगा जो 2 लाख का शर्ट खरीदता होगा? नहीं, डोंट यू थिंक सो? देखो उसने शोरूम खोल के बैठा है, मॉल में बैठा है, पैलेडियम जैसे मॉल में बैठा है, 2 लाख का शर्ट रखता भी है, तो कोई खरीदार भी तो आता होगा तो ही तो रखा है. यस और नो? यस सर. कोई तो बायर आता होगा. इमेजिन अगर कोई बायर आता होगा तभी तो उसने सेल करने के लिए रखा है वहां पे. बट डोंट यू थिंक सो अ पर्सन like me who's gonna buy a shirt say of 1,000 rupees will never buy a shirt of 2 lakh? Yes or no? 1,000 रुपए के शर्ट खरीदने वाले कस्टमर और 2 लाख रुपए के शर्ट खरीदने वाले कस्टमर का मार्केट ही अलग है. हाँ या ना? यस सर. तो उसको तो हर्ट होने वाला ही नहीं है ना डोमेस्टिक इंडस्ट्री को. ऐसे लोगों से तो, ऐसे लोगों से डोमेस्टिक इंडस्ट्री हर्ट होती है क्या? नहीं. तो ऐसे जगह प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का कोई जरूरत नहीं. सो ये आई होप नाउ यू अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ प्रोटेक्टिव ड्यूटी एंड सेफगार्ड ड्यूटी. Great guys. Now I will request all of you to just come to page number 804. We are just about to complete this and then I'll give you time to read this, and if you have any doubts you can ask me.
हियर इट इज काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। कभी कभी है ना कोई कंट्री अपने साथ है ना बेईमानी करती है, देश बेईमानी करता है कोई। जैसा सबसे बड़ा बेईमान देश है अपने लिए चाइना, बहुत बड़ा बेईमान देश है, मालूम है तुमको? कितना बेईमान देश है मालूम है आपको? मालूम है गोरिल्ला ग्लास आता है, गोरिल्ला ग्लास। Yes, sir. अरे आप लोग क्या बोलते हो उसको, मैं भूल गया गोरिल्ला ग्लास को यार। Scratch guard. हाँ स्क्रैच गार्ड, स्क्रैच गार्ड भी बोलते हैं, गोरिल्ला भी बोलते हैं उसको, और भी कुछ बोलते हैं। हाँ हाँ टेम्पर्ड ग्लास। क्या टेम्पर्ड ग्लास। आपको पता है चाइना इतना बड़ा डैश है, सॉरी आई कैन नॉट यूज अनदर वर्ड, आई कैन ओनली यूज द वर्ड डैश, कि चाइना इतना बड़ा डैश है 6 रुपए में इंडिया को देता है। कितने रुपए में देता है आपको मालूम है? तुम्हारे मोबाइल के ऊपर जो गोरिल्ला ग्लास लगा है ना टेम्पर्ड, वो 6 रुपए का है, 6 रुपीज। तुमने कितने में खरीदा है तुमको पता है? चलो देखते हैं। चेतना तेरे फोन पे स्क्रैच गार्ड लगा है क्या? कितने में खरीदा था तूने? 150। चलो बोलते जाओ फटाफट गिजेल। 200, 150, 200। ट्राइफेना क्या बोली? ओके मेल्चर, नो आई कैन नॉट हियर यू मेल्चर। 80 rupees. 80, वेरी गुड। अंजलि? Sir, 200. 200 की। माया? 100. खदीजा? 20-30 रुपया, वेरी गुड। साक्षी? 100. मानसी? 50। राज? 100. स्नेहल? 100. ज्योति? 100. हेली? 100. अनन्या? 150. अश्विनी? प्रणाली? 150. आपने देखा इधर 20-30 रुपए वाला भी कोई था? सुना क्या किसी का 20-30 रुपए? We had 50, 80, 100, 150, 200. ओके, इमेजिन एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी है? 6 रुपया। उसके ऊपर हमें क्या लगाना पड़ता है मालूम है? ये काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। क्योंकि ये कंट्री क्या करती है, इंडिया में माल उतारने के लिए इतना सस्ता करती है कि इसको महंगा करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है बॉस इसके ऊपर ड्यूटी लगाओ। तो आपको पता है इसके ऊपर आज की तारीख में मिनिमम 50 रुपए की ड्यूटी है, मतलब ताकि उसका मिनिमम प्राइस ही 56 हो जाए। समझ में आया? आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मतलब आइटम जितने रुपए की है उससे कितना गुना उस पर ड्यूटी लगा हुआ है, क्योंकि वो कंट्री जानबूझ के अपने कंट्री को सब्सिडाइज्ड आर्टिकल बेच रहा है। एंड लास्ट, सेम वे एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन डम्प्ड आर्टिकल। बहुत सारी कंट्री अपना पूरा का पूरा माल इंडिया में डंपिंग कर देती है और उसके लिए हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़ती है अंडर सेक्शन 9A1। लेट मी एक्सप्लेन यू एंटी डंपिंग कब लगता है। आपको पता है ये अपना ये, अरे तुम लोग लगाता ना कान में, क्या बोलते हैं उसको? अरे वो जो वायरलेस होता है, नहीं, अरे पॉड, अरे एयरपॉड। आपको पता है एप्पल का एयरपॉड कितने का आता है? 25,000. 25,000. सोने का है क्या? Apple कैसे? आप समझे मेरा क्वेश्चन कहाँ था? आर यू अंडरस्टैंडिंग द हिंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव? एयरपॉड 25,000 रुपए का, क्या चीज है उसके अंदर भाई 25,000 का? सिर्फ ब्रांड का पैसा ले रहे हैं क्या? नहीं, यू नो व्हाट। और वही एयरपॉड आपको पता है यूएस से मंगाओगे तो कितने का है? इफ यू आस्क द सेम एयरपॉड फ्रॉम यूएस, एट व्हाट रेट यू आर गेटिंग एयरपॉड? 18,000. नो, यूएस 12,000 बॉस। कितने का एयरपॉड है? 12,000। तुम्हारे इधर 25,000, तो बचा हुआ 13,000 रुपया जो ड्यूटी लग रहा है ना बॉस, वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रहा है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि एप्पल बना के इंडिया में डंप करता है, उसको मालूम है इंडिया वाला पगला गया है एप्पल के पीछे। समझ में आ रहा है? डंपिंग
Yes, sir. ग्रेट, क्योंकि वो लोग इंडिया में डंप कर रहे हैं. डंप मतलब बना बना के इंडिया मार्केट में बेच रहे हैं, तो इंडिया मार्केट भी उसके ऊपर ड्यूटी कमा रहा है तुमसे. Okay, before I move on to finishing touches, I want you to read this 3 pages आराम से. Please, this is the main part of today's class. I want all of you to read it well. Start from types of custom duty, please. Please read from your soft copy. Please do it well. Just go through it once. Okay, any doubts, any queries? Sir, can you please explain GST compensation once again? Yeah, GST compensation cess. It's a cess, Yeah. right? Supposedly, if any item is liable to GST compensation cess, we will charge GST compensation cess as per section 8 of that law. That's all. That is what you need to understand. Now, what is GST compensation cess and what is section 8? We will learn in the GST law. अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर चार्ज करना है तो सेक्शन 8 के हिसाब से करना है. दैट्स द एमसीक्यू व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. इज द वेरी अंडरस्टूड कि एमसीक्यू में खाली क्या आएगा. वेरी क्लियर. ओके, नाउ टू फिनिश द आंसर, come to page 805. Now this is very important, again asked in the exam. The new charge which has come up called as social welfare surcharge. इसका नाम है SWS. I repeat, name is social welfare surcharge as per section 110 of the Finance Act 2018, effective from 2nd Feb 2018. इन्होंने क्या बोला है कि जो भी गुड्स इंपोर्ट होता है इंडिया में उसके ऊपर 10% ऑफ एग्रीगेट मतलब टोटल ऑफ ड्यूटी प्लस टैक्स प्लस सेस, सबका टोटल करो और उसका 10% ले लो. दैट विल बी कॉल्ड एज सोशल वेलफेयर सरचार्ज. हाउएवर, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन safeguard duty, countervailing duty, anti-dumping duty, IGST and GST compensation. उसको छोड़ के जितनी ड्यूटी, जितने टैक्सेस, जितने सेस, सबको ऐड करो और उसका 10% ले लो. दैट इज सोशल वेलफेयर सरचार्ज. प्लीज रिमेंबर, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस अगेन एज पर सेक्शन 111 will be at the rate of ₹8 per liter on petrol and high speed diesel, again on import. So imagine, because we are importing petrol and diesel, तो उसके ऊपर ₹8 प्रति लीटर एक्स्ट्रा लगता है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के नाम से. और SWS is at the rate of 10%. So remember, social welfare surcharge is at the rate of 10% on all other goods. Only on motor spirit petrol and high speed diesel which are outside the GST ambit, उसके ऊपर it is ₹8 per liter with the name of road and infrastructure cess. Is that very very clear? एक का सेक्शन 110 है, एक का सेक्शन 111 है. ओके, एंड लास्ट, एज पर द फाइनेंस एक्ट 2020 देयर इज हेल्थ सेस. क्यों लगा है हेल्थ सेस? ओनली ऑन द इंपोर्ट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट contained in the 4th schedule. What is the rate? It is 5% on the value. So medical devices जिसके ऊपर BCD नहीं लग रहा है उसके ऊपर तो हेल्थ सेस लगेगा ही नहीं. मतलब जो BCD में जिसको बाहर रखा है, एग्जेम्प्टेड गुड्स है, उसके ऊपर हेल्थ सेस नहीं लगेगा. एंड लास्ट, हेल्थ सेस अगर तुमने भर भी दिया तो आप उसका क्रेडिट मतलब कहीं से भी ये नहीं बोल सकते कि वो सेस के सामने अपना कोई ना कोई टैक्स आप माफ करवा लो. यू कैन नॉट आस्क फॉर एनी क्रेडिट ऑफ द हेल्थ सेस. सो आई रिपीट, द हेल्थ सेस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय
Finance Act 2020. 2. It is as per the 4th schedule. 3. It is levied at the rate of 5% on the assessable value. जिस आइटम के ऊपर BCD नहीं लगता है, हेल्थ सेस भी नहीं लगेगा. एंड लास्ट, credit of health cess is not available to any supplier. You do not get the credit. आपको डेबिट ही रहेगा, मतलब आपको भरना ही है. You will never get the refund or credit of it. That's all for the health cess. And here we finish all the type of duties. Let us revise it once again. Can we start revision? ओके चलो बीसीडी. बीसीडी के बारे में क्या क्या याद है, कौन बताएगा? हु विल रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट बीसीडी? हु इज गोना टॉक अबाउट बीसीडी? बीसीडी बीसीडी या ज्योति? बीसीडी. Sir, it is charged, first of all, it is charged on percentage, as percentage is charged as percentage, and there is two values, standard value and preferential. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. Standard बीसी, value अरे रुको, versus अरे रुक. पहला, it is charged on percentage. Percentage will be on some value. Value will be determined as per section 14 subsection 1. There are two rates: standard rates, preferential rates. So if you import a commodity from enemy country, not allowed. From a friend country, standard rate. From a close friend country, preferential rate. However, the owner of the goods has to prove that you have imported the goods from a close friend country. That's all. See, मैंने पूरा कैसे बोल के दिखाया. आपको ऐसा पूरा प्रोविजन बोल के दिखाना है. ओके, वंस अगेन, कम ऑन ज्योति. this BCD, is on percentage base. The percentage is the percentage of the value. The value is determined as section 14 subsection 1. There are two types, standard and preferential. If you are importing goods from a enemy country, it's not allowed. You can import goods from a normal country who is a friend, then standard rate is applicable. If you are importing goods from a very close friend country, then preferential rate. If the owner has to prove that the country is a close one, then only preferential rate will be applicable. Okay, anybody will explain me additional? Very good, Jyoti. Additional customs duty or CVD, countervailing duty? Yeah, Sakshi. So, additional custom duty is the additional GST applied on the goods to match its selling price with the Indian goods. So that for the, yeah, and it is not applied on goods like alcohol, as it's Whenever you use the word alcohol, beta, you always use the alcohol for human consumption. okay. Okay. And one more thing, the most important thing here is that it is levied on assessable value plus BCD. मतलब वैल्यू पे BCD पहले लगेगा, फिर दोनों का जो टोटल आएगा उसके ऊपर you will put the CVD. Is that very clear? Yes. Okay. So anybody will talk on additional duty or SAD, special additional duty? Additional duty or special additional duty? Anyone? SAD? SAD? SAD is applied to make a balance between sales tax and Correct. imports or importers. Okay.
and it is excluded on petroleum products. Yes or no? Then GST compensation में कुछ देखना नहीं है. What are protective and safeguard duty? Who will tell me what are protective and safeguard duties? Protective and safeguard duties are to safeguard our Indian manufacturers that importers do not take the benefit of the lower price. Correct. So if you want to protect any industry, you will use protective duty, and if already they are being exploited on a large scale, then you will use safeguard duty. Okay. Why do you use countervailing duty on subsidized article? So because some countries sell their goods in very cheap price. Absolutely correct. And you want to negate the effect, and therefore countervailing duty on subsidized articles is charged. Why anti-dumping duty on dumped articles is charged? So in the name of brand, they are just exploiting. No. वो नहीं है. एंटी डंपिंग मतलब क्या होता है गाइस? दे आर डंपिंग मतलब दे आर थ्रोइंग द कमोडिटी इन अवर कंट्री. सबका सब मैन्युफैक्चर करते हैं और 80% से ज्यादा इंडिया में बेच देते. सो वो लोग सोचते हैं कि इंडिया वाले ही मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे. समटाइम्स दे आर सो, मतलब वो लोग क्या करते हैं, इवन अपने नॉर्मल रेट से कम रेट में भी इंडिया में सप्लाई करते हैं. तो इंडिया वाले को ड्यूटी लगा के इतना महंगा करना पड़ता है ताकि ऑटोमेटिकली डंपिंग बंद हो जाए. दैट इज एंटी डंपिंग. We have SWS. SWS is levied as per section 110 of the Finance Act 2018. Effective from 2nd Feb 2018. SWS is charged at the rate of 10% on the aggregate of all taxes, cess and duties. However, it does not include safeguard, countervailing, anti-dumping, IGST and GST compensation cess. We also have road and infrastructure cess, which is at the rate of ₹8 per litre on motor spirit and high spirit, motor spirit petrol and high speed diesel, which are outside the purview of GST. Is that very clear? We have health cess as per Finance Act 2020. It is again as per 4th schedule, charged at the rate of 5%. If BCD is not charged, then health cess will never be applicable, and credit of health cess is never available to any supplier. Is that very clear? जो मैंने पूरा बोल के दिखाया. समझ आया? तो आपको ये पूरा याद करना है गाइस, है ना. आज हमारा पूरा टाइप्स ऑफ ड्यूटीज खत्म हो गया.